कि आजकल मैं केसेस बहुत सुनती हूँ। लोग आजकल नहीं, मतलब जमानों से सुन रहे हो कि भूत प्रेत आ गई, माता आ गई, अबैंडन कर दो बच्चे। हाँ बिल्कुल, मिर्गी का जब भी दौरा, ਜਦੋਂ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ। हाँ। ये पर्पल कलर का सिग्निफिकेंस क्या है, खास करके एपिलेप्सी के साथ? पर्पल कलर जैसे लैवेंडर कलर होता है, पर्पल कलर लाइलैक कलर होता है। ये बहुत एक सुंदर फ्लावर होता है, लैवेंडर फ्लावर होता है। या। पर इसका जो सिग्निफिकेंस कहते हैं कि वो बहुत हिडन कलर होता है, जो छुपाया जाता है, मिस्टीरियस होता है। और मिर्गी भी, एपिलेप्सी भी हिडन हिडन बीमारी है जो हम लोग छुपाना चाहते हैं, डिस्कस करना नहीं चाहते। आप लोग पर्पल पहने, इसको फाइट करें और बताएं कि हम लोग इसको छुपाना नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू हाइड द पर्पल कलर। यू डोंट हैव टू वेयर टी शर्ट, यू डोंट हैव टू वेयर शर्ट, एक पर्पल बैंड, एक स्क्रंची, कुछ पहन लीजिए उनके लिए। मतलब इट्स जस्ट अ फाइट फॉर अ कॉज। जैसे एड्स के लिए हम लोग पिंक पहनते हैं, या नहीं, पिंक इज फॉर ब्रेस्ट कैंसर, इज फॉर कैंसर आई थिंक, एंड एड्स के लिए रेड है। सो दैट इज व्हाई पर्पल इज फॉर एपिलेप्सी। जब स्कूल टीनेजर हो तुम्हारे ऑलरेडी हार्मोन्स इतने पीक पर हैं, हाँ। तुम इमोशनल हो और सडनली तुम्हारा दौरा पड़ गया, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे बात करना छोड़ दिए और उस टाइम तुम बिल्कुल एक शेल में चले जाते हो। जी बिल्कुल। तो वो फिर मेरे को अपने में दुनिया में चली गई। फिर मैंने पोएट्री शुरू कर दी। ओके। राइटिंग शुरू कर दी। अच्छा, उस एज में आपने पोएट्री शुरू किया? 9-10 इयर्स में मैंने Okay. राइटिंग शुरू कर दी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥ ਹੈਗਾ, ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਮੰਥ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਡੇ ਹੈਗਾ। ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਝੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਨਸ ਦਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਸਕਾਰਫ, ਚੁੰਨੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਮੰਥ ਹੈਗਾ, 26 ਮਾਰਚ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਵਾਰੀਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੌਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਨਾਲ, ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਰਗੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਫ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼। ਆਫ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫਲਾਈਂਗ ਬਿਯੋਂਡ ਸਟਿਗਮਾਸ। मतलब कि एक एपिलेप्सी ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਮਿਰਗੀ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਡਾਨ ਵੀ ਭਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ हेलो, सत श्री अकाल। थैंक यू, सत श्री अकाल। मेरे को पंजाबी नहीं आती तो सॉरी फॉर दैट बिंदु। कोई बात नहीं। एंड बोलनी नहीं आती, समझ आती है बट आई स्पीक इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। मैं आपको हिंदी, तुसी हिंदी च गल करना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी ते हिंदी दोनों च शायद सवाल करांगी। हाँ जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये जो बुक लिखी है ट्रू लाइफ स्टोरीज आपने लिखा है, इसमें काफ़ी डिफरेंट से आपने टाइटल या सब्जेक्ट्स रखे हैं, जैसे कि पर्पल क्लाउड्स, फिर उसके बाद डायरी ऑफ ए वॉरियर, क्वीन इन कॉम्बैट मोड, जो कॉम्बैट मीन्स कि बीमारी के साथ किस तरह से आपने जूझे, किस तरह से उसे आपने उसको हराया, उसके साथ लड़ाई की आपने, ऐसी कई चीज़ें। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। और इसमें मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपने पर्पल कलर की बिंदी लगाई है, पर्पल कलर का आपने आई शेडो जरूर लगाया है, आप लिपस्टिक पर्पल लगाना भूल गई हैं और उसके साथ आपने पर्पल साड़ी पहनी है और मैंने पर्पल स्कार्फ पहना है। हाँ। ये पर्पल कलर का सिग्निफिकेंस क्या है, खास करके एपिलेप्सी के साथ? बिंदु, बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे को आम आदमी पूछते हैं कि पर्पल पहनने से मैम क्या मिर्गी हमारी क्योर हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। पर्पल कलर जैसे लैवेंडर कलर होता है, पर्पल कलर लाइलैक कलर होता है, ये बहुत एक सुंदर फ्लावर होता है, लैवेंडर फ्लावर होता है। पर इसका जो सिग्निफिकेंस कहते हैं कि वो बहुत हिडन कलर होता है, जो छुपाया जाता है, मिस्टीरियस होता है। और मिर्गी भी, एपिलेप्सी भी हिडन बीमारी है जो हम लोग छुपाना चाहते हैं, डिस्कस करना नहीं चाहते। इसलिए हम लोग ये पर्पल कलर पहनते हैं ताकि हम लोग इसको ज़्यादा बाहर निकालें। लोग, आप लोग पर्पल पहने, इसको फाइट करें और बताएं कि हम लोग इसको छुपाना नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू हाइड द पर्पल कलर। पर्पल कलर एक हमारी फाउंडर है कैसिडी मेगन, अमेरिका में, उसने ये कलर निकाला है सबको पहनने को। नॉट ओनली ऑन 26 मार्च, जब भी मैं निकलती हूँ घर से, जब भी आपको एहसास हो कि आपने लोगों को बताना है कि यू वांट टू फाइट अगेंस्ट एपिलेप्सी, मिर्गी के बारे में जागृत करना है, यू मस्ट वेयर पर्पल। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी को एपिलेप्सी है, मिर्गी है, आप प्लीज़ पर्पल पहन लिए, बाय कीजिए उनके लिए। यू डोंट हैव टू वेयर टी शर्ट, यू डोंट हैव टू वेयर शर्ट, एक पर्पल बैंड, एक स्क्रंची, कुछ पहन लीजिए उनके लिए। मतलब इट्स जस्ट अ फाइट फॉर अ कॉज। जैसे एड्स के लिए हम लोग पिंक पहनते हैं, या नहीं, पिंक इज फॉर ब्रेस्ट कैंसर, इज फॉर कैंसर आई थिंक, एंड एड्स के लिए रेड है। सो दैट इज व्हाई पर्पल इज फॉर एपिलेप्सी। इट इज जस्ट दैट। ओके, ये कलर्स का भी अपना, कलर्स ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਲਰ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸਿੰਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਕੇਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ आप खुद भी मिर्गी के मरीज हैं। हाँ जी, हाँ जी। कब हुआ आपको ये सब कुछ, और एक्चुअल में आपको कब लगा कि मुझे इसके साथ फाइट करना है, हर तरीके से, हर कॉर्नर से? एक बीमारी की तरह ही मुझे फाइट नहीं करना है, पर मुझे इसे लोगों में लेके जाना है, उनको भी पॉजिटिव तरीके से मुझे जो है इंस्पायर करना है कि इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए। और उसके बाद फिर बहुत बड़ी बात है कि आपने किताबें लिखी। एक्चुअली बिंदु जी, मैं 2 इयर्स की थी, बच्ची थी, जब मेरे को आई थिंक बेबी थी, मेरे को एक्सीडेंटली किसी नर्स ने ड्रॉप कर दिया डिलीवरी के टाइम, मेरी मदर की डिलीवरी के टाइम। तो तब तक मुझे पता नहीं था। जब एट द एज ऑफ 2 मैं अपनी डॉटर के साथ, अपने सिस्टर के साथ नहा रही थी, तब मैं बिल्कुल ब्लू टर्न हो गई और पेरेंट्स मुझे रश करके गए हॉस्पिटल, और वहाँ पता चला, डायग्नोज किया डॉक्टर्स ने कि मुझे एपिलेप्सी। आई थिंक आई एम बॉर्न इन अ वेरी गुड फैमिली कि पेरेंट्स ने अबैंडन नहीं किया, और वो भी 70s का ज़माना, और मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, ट्रीटमेंट शुरू हुई एपिलेप्सी। क्योंकि आजकल मैं केसेस बहुत सुनती हूँ, लोग आजकल नहीं, मतलब ज़मानों से सुन रहे हो कि भूत प्रेत आ गई, माता आ गई, अबैंडन कर दो बच्चे। हाँ बिल्कुल, मिर्गी का जब भी दौरा, जो मिर्गी का दौरा ਹੁੰਦਾ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ। ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਅਫਵਾਹਾਂ
ਕਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ। ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫੈਂਟ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, मतलब जस्ट आई वाज जस्ट ड्रॉप्ड एज अ बेबी, मतलब गिर गई, you know। ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ अनकॉन्शियसली कर गया, वो तो हेड इंजरी हो गई। I was just one case। अभी इस बुक में जैसे मैंने 8 एपिलेप्सी वॉरियर्स की स्टोरीज बताई है, इसमें एक मैम है जो डिलीवरी टेबल पे अपने बेबी को डिलीवर कर रही हैं एट द एज ऑफ 45 एंड शी इज डेवलप्ड एपिलेप्सी। मतलब किसी उम्र में भी, किसी एज को, किसी उम्र में भी किसी को एपिलेप्सी हो सकती है। इस बुक में एक फौजी हैं जो सरहद पे जा रहे हैं लड़ाई करने, और उनको उस मतलब माउंटेन पे उनको एपिलेप्सी का दौरा पड़ गया है वहां पे। मतलब किसी को भी किसी एज पे कहीं भी एपिलेप्सी हो सकती है, जैसे कैंसर हो जाता है, जैसे डायबिटीज हो जाती है। तो हमारे साथ ही ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, हमारे साथ ही आपको ये स्टिग्मा क्यों एपिलेप्सी? मतलब आप क्योंकि एपिलेप्सी के पेशेंट खुद भी हैं, हाँ जी, और आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लेते रहे हैं, हाँ अभी भी जी, चलता हाँ जी, होगा हाँ डेफिनेटली, जी, आपका बिल्कुल। ट्रीटमेंट पे है, आप मेडिकेशन पे हैं। आपको कैसे, मतलब क्या डॉक्टर्स ने कैसे बताया या क्या बताया कि जैसे आप कह रहे हैं कि अलग अलग एजेस में भी हो सकते हैं, तो इसकी क्या वजह और क्या क्या कारण, कैसे कैसे पता लगता है कि मुझे जिसको पहले ना हुआ हो, आपको तो जैसे बचपन से ही आपको हो गया, हाँ जी, हाँ तो जी। वो तभी की तभी डायग्नोज हो गया, और अब जब आप ग्रो अप किए तो आप एपिलेप्सी के साथ ग्रो अप किए। हाँ जी। पर अभी जैसे आपने मेंशन किया कि किसी को अचानक हो सकता है, फौजी को वॉर पे जाते हुए हो गया, एक माँ थी जो कि बच्चे को डिलीवर कर रही थी डिलीवरी टेबल पे, हाँ जी। और उस टेबल पे उस माँ को हो गया, हाँ जी, बच्चे को डिलीवर करते करते, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें नस दबती है, किस तरह से सीजर होता है, साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट रहते हैं। डॉक्टर के साथ जब आपने बात की तो डेफिनेटली, क्योंकि आप बहुत एक्टिव हैं, हाँ जी। एक्टिविस्ट भी हैं आप, हाँ जी। तो आपकी बातें होती होंगी। मतलब there are 45 types of seizures, 45 टाइप ऑफ एपिलेप्सी सीजर्स, इतने टाइप होते हैं। कभी ब्रेन ट्यूमर में भी हो सकता है, अ ब्रेन ट्यूमर कैन कॉज एपिलेप्सी, ब्रेन स्ट्रोक कैन कॉज एपिलेप्सी। कितने टाइप के सीजर्स होते हैं जो एपिलेप्सी कॉज कर सकते हैं। हाँ। तो हर केस अलग है। हाँ। हर टाइप के हर पेशेंट अलग है। कोई 2 साल का बच्चा, कोई 15 साल का बच्चा, उसको भी एपिलेप्सी हो सकती है। हाई फीवर कैन कॉज इट। देयर आर डिफरेंट मेडिकल रीजंस व्हिच कैन कॉज एपिलेप्सी। तो कभी कुछ इंजरी होगी जैसे मुझे हुई थी, जी, जी। कभी कुछ अदर कोई और मेडिकल रीजंस हो सकते हैं विच जो एपिलेप्सी कॉज कर सकते हैं। स्ट्रेस कैन, टू मच ऑफ स्ट्रेस कैन कॉज एपिलेप्सी। मतलब बहुत कारण हो सकते हैं जो एपिलेप्सी कॉज कर सकते हैं। हाँ। ओके, तो इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी एक और चीज है वो ये है कि आपको ये कब पता लगा कि मुझे राइटर बनना है, क्योंकि ये एक बड़ी चीज है जो आपने की है। मैं जब छोटी थी स्कूल में, तो ये पॉइंट मैं आपको जरूर कहना चाहती हूँ, जो अगर जो मुझे सुन रहे हैं, स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स, स्कूल में जब दौरा पड़ता था, पानी तो मैंने इसलिए दिया आपको कि गर्मी हो गई है। चलिए। स्कूल में जब दौरा पड़ता था तो कुछ बच्चे बात घर जाते थे। हाँ। और घर जाके माँ बाप को बताते थे मेरी फ्रेंड को दौरा पड़ा। तो 70s के एरा में माँ बाप ने बोला ओ भूत प्रेत आके बात हाँ। मत करना। तो वो जो फ्रेंडशिप सडनली बंद हो जाती थी। तो एक जब स्कूल टीनेजर हो तुम्हारे ऑलरेडी हार्मोन्स इतने पीक पर हैं, तुम इमोशनल हो, और सडनली तुम्हारा दौरा पड़ गया, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे बात करना छोड़ दिए, और उस टाइम तुम बिल्कुल एक शेल में चले जाते हो। जी बिल्कुल। तो वो फिर मेरे को अपने में दुनिया में चली गई। फिर मैंने पोएट्री शुरू कर दी। ओके। राइटिंग शुरू कर दी। अच्छा, उस एज में आपने पोएट्री शुरू किया? 9-10 इयर्स में मैंने राइटिंग शुरू कर दी। उसमें क्या लिखा पहली बार आपने? 9-10 साल की उम्र में? आई थिंक मैंने अपनी एक फर्स्ट पोएम लिखनी शुरू कर दी। एक इमेजिनरी वर्ल्ड शुरू कर दी। टेडी बेयर्स थे, मेरे डॉग था, मेरे फेरी टेल्स थी, और वहाँ से मैंने अपनी राइटिंग की दुनिया शुरू की। और पर धीरे धीरे वो मैं जब एडोलेसेंस में पहुंच गई, शादी भी होगी, मैं अपने लिखती रहती थी, अपने डायरी मेंटेन करती रहती थी। मतलब उसमें एक जो अंदर का दुख था वो रिलीफ निकलता गया उसमें। पर वो वहाँ से मेरी राइटिंग शुरू होती गई। वो जब मैं अपनी मैरिज में थी, मैं आर्मी लाइफ में अपने आर्टिकल्स भेजती रहती थी।
पर वो एक हमेशा एक राइटर के अंदर होता है कि मुझे एक अपनी किताब पब्लिश करनी है। हाँ बिल्कुल। तो वो मेरी फर्स्ट बुक आई थी 2012 में, मेरे को था Okay. कि मेरे को अपनी फर्स्ट एक किताब निकालनी है। उसका नाम क्या था और किस मजमून पे थी, क्या वो सब्जेक्ट था? फ्लर्टिंग विद फेट उसका नाम था। फ्लर्टिंग विद फेट, क्राइम थ्रिलर। ओके, क्राइम थ्रिलर। क्राइम थ्रिलर वो मैं शिमला गई थी और वहां मैंने लिखी थी, फर्स्ट क्राइम थ्रिलर थी। ओके। पर मेरे को था कि पर मुझे तब भी मुझे एपिलेप्सी के बारे में रियलाइजेशन नहीं हुआ, बस मैं दवाई खाती रहती थी और मतलब लाइफ जी रही थी। Okay. एक मेरे को लाइफ का पर्पस नहीं मिला था। Okay. पर जब मैं 4 किताबें लिख दी, 2 क्राइम थ्रिलर, एक मैंने अपनी लाइफ में दूसरा क्राइम थ्रिलर कौन सा लिखा? वॉच्ड। पर जब मेरा जब डाइवोर्स हो गया, मैंने अपनी लाइफ पे एक बुक लिखी, जो मैंने कैसे अपनी ब्रोकन मैरिज से मैं निकल आई। एक अंदर एक वो दुख भर गया था और मैंने अपनी लाइफ पे एक बुक लिखी। वो थर्ड थी? वो सेकंड बुक थी, क्रॉसरोड्स। ओके। हाँ, तो मतलब वो एक वो पूरा थर्ड वॉच थी। हाँ, थर्ड वॉच थी। तो पर जब मेरे एक फ्रेंड का बेटे की डेथ हो गई और वो एपिलेप्सी से डेथ हुई, और तब मेरे को लगा कि ये मेरे को डिजीज भी है, डिसऑर्डर भी है और मेरे को राइटिंग का टैलेंट भी है, अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। हाँ। तो उससे पहले कि मैं लोगों को, आई थिंक इट्स टाइम कि मैं लोगों को बता दूं एपिलेप्सी क्या है, और बुक सबसे बेस्ट माध्यम है, एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। हाँ। तो और मैं रहूं ना रहूं, किताबें तो रहेंगी। हाँ। तो तब मैंने लिखना शुरू किया, रिसर्च की इसके बारे में, और जब मैंने रिसर्च की मेरे को रियलाइज हो कितना कुछ मुझे नहीं पता। ओके। मतलब मेरे को तो सिर्फ ये पता था अपनी बीमारी के बारे में, बट देयर सो मेनी पेशेंट्स आउट देयर। तब मेरे को लगा मैं उनकी आवाज बन सकती हूँ। ऐसा नहीं लगता कई बार कि अगर दूसरे लोगों के साथ बातचीत करें और इस तरह के और केसेस आपके सामने आए, तो शायद इंसान थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव और हो जाता है और उसको एनर्जी मिलता है कि अरे मेरे से भी दुखी बहुत दुनिया है। आई रियलाइज कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। मतलब मेरे को तो सिर्फ आई थिंक साल में एक बार दौरा पड़ा। इतने पेशेंट्स थे, उनको तो दिन में आई थिंक 15-20 दौरे पड़ते होंगे। मैं जब डॉक्टर से बात करनी शुरू की एंड अपने डॉक्टर से और डॉक्टर से बात करना शुरू किया, मेरे को रियलाइज हुआ कि देयर सो मेनी मोर पेशेंट्स जो इतने ज़्यादा हैवी डोजेज खा रहे हैं। मैं तो दिन में सिर्फ 2500 mg दवाइयाँ खा रही हूँ। मेरे से ज़्यादा इतने पेशेंट्स हैं जिनको इतने हैवी डोजेज खा रहे हैं, इतना सीवियर एपिलेप्सी है। मेरा तो कुछ भी नहीं है। और मेरे को ऐसे मैसेजेस आने लग पड़े, मैम हमारी नीस को एपिलेप्सी है, हमारी बहन को आप कोई आश्रम बता दो, उनको वहाँ छोड़ना चाहते हैं। ओह माय गॉड। मतलब मैं सोची थी मेरे माँ बाप, मेरी बहन ने मुझे छोड़ा नहीं। आपने शादी की बात की, शादी की बात पे आपने कहा कि मैंने बुक लिख दी क्रॉसरोड्स। हाँ जी। शादी करने के लिए भी ऐसे लोगों को दिक्कत आती है, लड़कियों को बहुत दिक्कत आती है, मर्दों को भी आती है। किसी को पता लग जाए कि इस व्यक्ति को या इस इंसान को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो लोग जल्दी उसके साथ मैरिज नहीं करना चाहते, कोई अपनी बेटी कोई बेटा नहीं देना चाहता है। बिल्कुल। ये एक प्रॉब्लम तो है। आपको नहीं ऐसी प्रॉब्लम आई क्योंकि आपने बताया कि आपके पति जो है वो आर्मी में थे, उसके बाद आपने डाइवोर्स की बात की। हाँ जी। डाइवोर्स आपका कब हुआ और उसकी वजह क्या थी? क्या आपके आपस में जो रिश्ते थे वो ठीक नहीं, कहीं थॉट्स में रह सके, या क्या वजह रही होगी? ये पूछना तो नहीं चाहिए, वैसे तो बहुत पर्सनल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल पूछिए, आई हैव नो प्रॉब्लम इन आंसरिंग। अदरवाइज नहीं मेरे पूछना हस्बैंड चाहिए। और मेरे लव मैरिज थी एंड बट वो पूरी तरह कहीं ना कहीं आई थिंक उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि मेरे को एपिलेप्सी है। ओके। और वो कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन ना कर पाए क्योंकि वो तो मुझे वादा कर चुके थे। पर एक बार आपके पति ने जो है वो इस चीज को आगे नहीं रखा, आपने बता दिया था कि मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। बिल्कुल। पर वो कहीं ना कहीं शादी, जैसे मैंने जोश टॉक्स में भी बताया, शादी एक एपिलेप्सी पेशेंट से वादा करना कि मैं शादी निभाऊंगा, और एक्चुअली वादा निभाना बहुत अलग बातें होती हैं। आई एम स्टिल हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं ये नहीं बोल रही कि सारी एपिलेप्टिक पेशेंट्स के जो मैरिड हैं, हैप्पीली मैरिड है, उनकी मैरिजेस फेल होती है। पर्सन टू पर्सन, मैरिज टू मैरिज डिपेंड करता है। पर कहीं ना कहीं मैं आई थिंक यहाँ मैं अपने आप को भी, टेक्स टू टू टैंगो। हर शादी में 2 लोग की सफलता का रिस्पॉन्सिबल है, 2 लोग का फेलियर का भी रिस्पॉन्सिबल है। मैं भी कहीं ना कहीं फेल हो गई क्योंकि मैं इतनी मेडिसिन खाती थी, मैं निभा भी नहीं पाई कि मैं आइडियल बहू नहीं बन पाई। मतलब जो सुबह उठ के नाश्ता बना पाए, बिल्कुल मैं वो कर ही नहीं पाई क्योंकि मैं परिवार संभाले। परिवार की जो इच्छाएं थी या उनकी आपकी तरफ जो एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदों पे आप खरी नहीं उतर पाई
क्योंकि आपको अपनी प्रॉब्लम थी? मेरे को खुद प्रॉब्लम थी और मैं जो मेरे साथ जो मेरी सास और मेरी ननद से मुझे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे बहू आएगी और ऐसे कर पाएगी, मैं वो कर ही नहीं पाई। और फिर कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड भी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए। तो वी रियलाइज्ड आफ्टर सम टाइम कि कंपैटिबल नहीं है। तो हम लोग फिर म्यूचुअल डाइवोर्स, आफ्टर थोड़ा खटपट कोर्ट में हमने म्यूचुअल डाइवोर्स ले लिया। और मेरी बेटी है, डॉक्टर है आज, शी इज स्टडीइंग टू बी अ सर्जन। तो हम मेरे हस्बैंड और मैं पीसफुल फ्रेंड्स हैं। वी आर नॉट, देयर इज नो बिटरनेस, देयर इज नो एनिमिटी। और हमारा बस एक ही टारगेट है कि बिटिया को सेटल करें उसको। हम मतलब हम लोग आज फ्रेंड्स हैं, कुछ खटपट नहीं हमारे बीच में। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि डिवोर्स्ड होने के बावजूद, तलाक लैन तो बावजूद भी आज चाहे बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੰਧਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬੰਧਨ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਈ ਡਿਵੋਰਸਡ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। एक यहाँ मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे फादर्स कितने भी हो, मदर्स कितने भी फ्रेंडशिप कर ले, फादर एक ही होता है, मदर एक ही होती है। बच्चे का कोई कसूर नहीं है, तो प्लीज बच्चे को सफर मत करने दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ गुड थिंग। हाँ जी। बाकी यू कैन कैरी ऑन विद योर थिंग्स। अच्छा, तो फिर आपने जो है ये बुक लिखी। हाँ और शादी आपकी जो फिर टूट गई, टूटने के बाद आप नहीं टूटी? कोई ऐसी बात लिखी थी, बस लिखी थी, किस्मत में लिखी थी, रब ने लिखी थी। इट वॉज मेंट टू बी। मेरा कुछ, आई बिलीव मेरा कुछ हायर पर्पस था कि आपकी शादी नहीं निभा सकते, आपका कुछ पर्पस ही कुछ और है। आपका मतलब ही कुछ और है। मतलब आप वो शादीशुदा जिंदगी एंड मैरिड लाइफ एंड वो सबसे निकलो और कुछ आपका पाथ ही कुछ और है। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा से ये निभाया नहीं जाएगा कि रिश्तेदारों को और सबको एंटरटेन करो, मुझसे नहीं होगा। तब मेरे को मेरे को तब समझ नहीं आया उस टाइम कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब, वाई आई ट्राइड माई बेस्ट, मुझसे नहीं हो रहा है। तब मेरे को जब मेरे कुछ इवेंट होता है एपिलेप्सी का, पेशेंट्स को हेल्प करने का, मेरे को एक बहुत एक्साइटमेंट होती है, एक ऑब्सेशन होता है कि मुझे कुछ करना है। एंड कुछ लोग नहीं समझते, कुछ लोग मेरे को टॉन्ट भी बहुत करते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। किसी को भी होता है एपिलेप्सी, नॉर्मल चीज है। ऐसे मुझ पे पता है मुझ पे क्या गुजरती है जब मुझे सीजर होता है। नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैम मुझे पता है जब एक सीजर आता है, हर पेशेंट का रिएक्शन अलग होता है बॉडी का। मेरा सुसु निकल जाता है, मेरे लैक्टन निकल जाती है, मेरी पूरी बॉडी स्पैज़म में जाती है। तो बहुत शरीर बिल्कुल बेजान हो जाता है 2 दिन के लिए। टंग कट जाती है और कट जाती है, टंग कट जाती है क्योंकि जबड़े में तुम्हारी जुबान आ जाती है, वो जुबान आ जाती है, लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है मुंह। हाँ, लॉक हो जाते हैं, टंग कट जाती। 1 हफ्ते तक खाना नहीं खा सकते। मेरी बेटी ने मुझे ऐसे संभाला है। तो इट्स होल पूरा बॉडी शरीर में जकड़ जाता है। तो मेरे को लोगों को ये अवेयरनेस देना है कि कोई माता नहीं आई है हमारे अंदर। आप लोग प्लीज अपनी मेडिसिन मिस मत कीजिए। जिस दिन मेडिसिन मिस कीजिए, आपको हर पेशेंट का अलग अलग ट्रिगर है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, अगर डायबिटिक आप हैं, अगर आपने ज्यादा गुलाब जामुन खा लिया, जलेबी खा लिया, आपके इंसुलिन लेवल राइज होंगे, हाई हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। सो सिमिलरली अगर आप एपिलेप्सी पेशेंट हैं, आपने मेडिसिन मिस की, तो सीजर आएगा। सिंपल बात है। तो आपको अपने ट्रिगर्स पता होने चाहिए। लैक ऑफ स्लीप, मेडिकेशन नहीं खाई, आपने स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया, तो आपको दौरा आएगा। कोई माता नहीं आई है, कोई आप इविल स्पिरिट पोजेस नहीं। बस आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं फर्स्ट एड टिप्स भी देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग सुन लें और अपने जो कहीं सड़क पे आपको किसी ने आपको देखा, आप मुंह मत मोड़े। हमको उस टाइम आपकी ज़रूरत है। दौरा पड़ा है, मेरे पास कितने लोग ने मेरे को देखा है, वीडियो बना रहे हैं, किसी ने पर्स से पैसे ले लिए, पैसे चुरा लिए, वहाँ खड़े खड़े बस देख रहे, कोई मदद कुछ और कई बार ऐसे ही तरीके से कोई अकेले लोग कहीं दौरे पे पड़ जाए, तो क्या लोग उससे बढ़ के भी उनका कोई ना किसी तरीके से उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? कुछ ऐसे हादसे आपके उसमें आए होंगे? मेरे साथ ऐसे 2 बारी हुआ है। किसी ने मेरे को 2 बारी किसी ने ज़बरदस्ती मोलेस्ट करने की कोशिश की है। और मेरी किताब में एक आदमी है, उसने भी अपना इंसिडेंट बताया, उसको भी किसी ने रेप करने की कोशिश की है। तो दुनिया अनकाइंड है।
और तो इस टाइम पे अगर कुछ अच्छे लोग हैं उधर, वो मदद कर सकते हैं जब दौरा पड़ रहा है। आपने अगर ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया तो बस एक ये काम कर दीजिए, जब दौरा किसी को पड़ रहा है उस टाइम आप मदद कर लीजिए जी। आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ वो दौरा सिर्फ 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सोचते उस टाइम लेदर सुंघा दो, लोहा सुंघा दो, तो ये गलत है। उस टाइम सिर्फ आपको वो दौरा वैसे ही 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आपको सिर्फ जैसे अगर आपके पास जैकेट है, शॉल है, ये स्कार्फ है, ब्रीफ केस है, बस सिर के नीचे रख दो 5। और क्योंकि और जो पेशेंट है उसको लेफ्ट साइड में हाथ लेटा दो, लेफ्ट साइड मोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड मोड़ दीजिए, क्योंकि नहीं तो उसका थूक उसके मुंह के अंदर गले में जा सकता है, उसकी विंड पाइप में जा सकता है, हवा की नली में जा सकता है, चोक हो सकता है। कोई नोकीला जैसे कोई फर्नीचर हो, कोई पत्थर हो साइड में, तो वो हटा दीजिए, क्योंकि वो शेक कर रहा है, वो शेक कर रहा है, दौरा पड़ रहा है। हाँ, तो उसको लग ना जाए कहीं। हाँ, अगर उसके पास कोई आईडी है, अगर मोबाइल खुला हुआ है, तो फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को इमीडिएटली कांटेक्ट कर दीजिए। और इमीडिएटली जो क्राउड इकट्ठा हो जाएगा, क्राउड फिर सेल्फी लेने की कोशिश करेंगे, वीडियो, उनको हटा दो, उनको मना कर दो। कोई उनका मोबाइल से चोरी करने की कोशिश करेगा, उनको मना कर दो, सेव करो। हाँ, उनको रीअश्योर करो कि हम आपके साथ हैं, आपको छोड़ कर ही जाएंगे। बिकॉज पेशेंट उस टाइम बहुत कंफ्यूज्ड है और बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, और डर रहा है। बिल्कुल। तो उनको बताओ हम आपके साथ हैं, हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, और आपके अंदर हम सब के अंदर इंसानियत जागृत है। आप अपनी इंसानियत उस टाइम निकाल दो, और उस टाइम उसको आपकी जरूरत है, उसको बोलो मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, आई एम देयर विद यू। और उसके साथ रहना जब तक दौरा खत्म नहीं होता, और वहीं खड़े रहो, वहीं बैठे रहो उसके पास जब तक, और सीजर को टाइम करो, जब सीजर शुरू होता है, अगर 5 मिनट से ज्यादा सीजर चले तो फिर एम्बुलेंस बुलाओ या किसी डॉक्टर को बुलाओ जी। और अगर इमिडिएटली जब कोई रिश्तेदार या कोई आ जाए, नहीं आए तो उसको घर तक पहुंचा दो। बस इतने से पांच पॉइंट्स है जो आपकी जरूरत है बस जी। इसमें आपने बड़ी अच्छी सी पोएम लिखी है। एक तो शुरुआती दौर पे आपने जो खास करके, क्योंकि मुझे आपने यही बुक दी है, ऑफ एपिलेप्सी, बटरफ्लाईज फ्लाइंग बियॉन्ड स्टिग्मास, और इसमें आपने बेसिकली जो है शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं इसमें। हाँ जी। नो अल्कोहल प्लीज, व्हेन एंजल अराइव्ड, ग्रैंडमास डे आउट, फ्लिकरिंग लाइट्स, ब्यूटीफुल। फ्लिकरिंग लाइट्स मतलब, क्योंकि एपिलेप्सी पेशेंट्स को अगर हम लोग डिस्को में जाते हैं तो फ्लिकरिंग लाइट्स उस तरह ट्रिगर करती हैं, हमको सीजर हो सकता है जी। ये शॉर्ट स्टोरीज उनके लिए हैं जो जिनको एपिलेप्सी नहीं है, तो ये स्टोरीज उनके लिए हैं जो समझ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नहीं है, आपकी फैमिली में शायद किसी को नहीं है, अगर आप ये स्टोरीज पढ़ेंगी तो आपको समझ आएगा कि आम आदमी को जो एपिलेप्सी के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, या किस तरह किन चीजों से इरिटेशन होता है, जो बाकी स्टोरी जो बाकी है रिलेटेड, वो उन लोगों ने कंट्रीब्यूट की है जिनके फैमिली मेंबर्स को एपिलेप्सी है। आपने इसमें एक लास्ट में लिखा है 199 पे इलेक्ट्रिक, व्हाट इज दैट? इट्स अ पोएम कंट्रीब्यूटेड बाय समबडी जिनकी फैमिली में एपिलेप्सी है। ओके, तो इस तरह से आप अगर देखा जाए तो बहुत भयंकर चीजें हैं, बहुत ही पेनफुल तो है, कम से कम तकलीफ होती है। फैमिली फिर भी आपने बनाई, बेटी है आपकी, वो डॉक्टर बन रही है, बन गई है। कौन सी उसमें है डॉक्टर, वो कौन सी मतलब स्ट्रीम से है वो? अभी शी इज जस्ट फिनिश्ड है MBBS फ्रॉम GMCH 32। अभी वो सर्जरी में शी वांट्स टू गो डू MD इन सर्जरी। ओके, MD इन सर्जरी। हाँ जी। ओके, तो इस तरह से आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी थी, आपको आगे का परिवार जो ससुराल था वो भी काफ़ी अच्छा मिला। बेटी आपकी, यू हैव सिंगल चाइल्ड? 1 डॉटर। ओके, 1 डॉटर। तो वो डॉक्टर बन गई हैं आज, तो फिर भी बहुत तसल्ली है कि चलो मुझे संभालने वाले लोग थे। शादी चली नहीं चली, वो एक कारण वजह, चाहे आपकी एपिलेप्सी बनी, ऐसे भी लोगों की टूट जाती हैं। ये कुछ ना कुछ लकीरों के खेल भी होते हैं, जिनकी होनी होती हैं या जिनकी नहीं होनी होती हैं, जिनकी चलनी होती हैं। पर उसके अलावा आपने अचीवमेंट्स की लाइफ में, आपने उसके बियॉन्ड जाके अपने आप को जिंदा भी रखा, अपनी तकलीफ़ों को सहा भी, और उसके साथ लड़ाई भी की। और उसके बाद की जो सबसे अच्छी बात है कि आपने पॉजिटिव रे ऑफ लाइट को जिंदा रखा, उस लैम्प पोस्ट को जला के रखा, और उस लैम्प पोस्ट में से जो आपकी चीज़ें अच्छी लाइट्स या दिए जले, वो 4 किताबें भी हैं। आई फील अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे
अभी जैसे अभी तो ये सिर्फ बुक्स तक है, मेरा अभी गोल है कि ना कोई बिग स्क्रीन में अभी तक एक पिक्चर बन जाए बस एपिलेप्सी पर। या अभी तक ऑटिज्म पे बन गई है, कैंसर पे बन गई है, एक बस एड्स पे बन गई है, हाँ कई चीजों एपिलेप्सी पे पे बन अभी गई है। तक, क्योंकि अपनी एक्ट्रेस सना शेख को एपिलेप्सी है, उसने डिक्लेयर कर दिया है। मैंने उनको ईमेल लिखी, उनके मैनेजर ने रिप्लाई नहीं किया। मैंने बोला प्लीज हमें एक एपिलेप्सी पे पिक्चर बना लो जी। पर कोई रिस्पॉन्ड, मैंने बहुत सेलिब्रिटीज को लिखा है पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो आई जस्ट होप, अभी बहुत कुछ मुझे, अभी तो बहुत जान है मुझ में, अभी तो बहुत कुछ करना है। ओके और क्या कुछ चाहते हैं आप, मतलब आपके शौक क्या क्या है अदरवाइज, और लिखने के अलावा, म्यूजिक, पर्पल पहनने के अलावा? पर्पल चाहे आपने पहना बेसिकली एपिलेप्सी को वो करने के लिए, सिंबॉलिक तौर पे करने के लिए, संकेत करने के लिए, बट अदरवाइज पर्पल आपको सूट बहुत कर रहा है। थैंक यू एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर बेसिकली। थैंक यू। आई जस्ट वांट, आई लव म्यूजिक एंड मेरा डॉग भी है, उसको भी एपिलेप्सी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग हाँ, चीज है, हाँ, ये भी आपने बताया। आपने डॉग भी एपिलेप्सी वाला कहाँ से मिला, ये क्यों रखा हुआ उसको अडॉप्ट किया था, उसको किसी ने अबैंडन कर दिया था क्योंकि उसको एपिलेप्सी थी, तो मैंने उसको अडॉप्ट किया 6 साल से। मतलब मैंने बोला कि उसने मुझे अडॉप्ट किया, मैंने उसको नहीं अडॉप्ट किया। Okay. उसने मुझे इतनी खुशी दी है एंड अभी तो वो घर को वो रूल करता है, मैं नहीं रूल करती हूँ। वो घर को मैनेज करता है एंड ही ऑल्सो हैज एपिलेप्सी। उसके वी जस्ट वॉन्ट लव एंड एक्सेप्टेंस। उसके भी सीजन्स बिल्कुल बंद हो गए हैं बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस ही इज गॉट इन द हाउस। वी जस्ट वॉन्ट लव एंड एक्सेप्टेंस, वी डोंट वांट सिंपैथी, किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए हमको। आपको कितना फ्रीक्वेंट है, मतलब कितना टाइम के बाद, कितना इंटरवल रहता है आपको भी? कितना मेरा अभी लास्ट सीजन हुआ था जून में, तो यूजुअली इट इज ड्यू टू स्ट्रेस, टू मच ऑफ स्ट्रेस। हर पेशेंट का अपना ट्रिगर होता है। मेरा ट्रिगर यूजुअली स्ट्रेस होता है, टू मच ऑफ स्ट्रेस। तो चाहे जितनी भी दवाइयाँ ले लो, समटाइम्स टू मच ऑफ ट्रिगर ओवरलैप्स। हाँ जी। तो वो खराब करता है हाँ, कई बार। हाँ। तो मैनेज कैसे करते हैं? मैनेजमेंट भी तो होती है इसकी, सिर्फ दवाइयाँ तो है ही है, मेडिकेशन तो है ही है, फॉर ट्रीटमेंट तो है ही है। नहीं, जैसे छोटी सी बात, सिंपल सी बात है, जैसे मैं नहा नहीं सकती जब तक मेरी मेड नहीं आती। ओके। क्योंकि अगर मैं अंदर बाथरूम से लॉक कर दूं और मुझे अंदर दौरा पड़ जाए, इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो मुझे बाहर को निकालेगा। हाँ। तो वो जब मेड आती है, मैं आप देखो, हम लोग इतने डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए कि भाई हमारी जिंदगी है, वी आर डिसेबल्ड। तो हमने अपनी जिंदगी में सब पेशेंट्स को ये बोलती हूँ, अपनी जिंदगी ऐसे बनाओ कि यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबॉडी। बेटा को मैंने बाहर भेज दिया, अब मैं अपनी जिंदगी मैंने ऐसे बनाई है कि आई डोंट हैव टू, शी डजंट हैव टू वरी। आई वाज डायबिटिक, मैंने अपनी डायबिटीज रिवर्स कर दी है। ओह दैट्स ये एक और बड़ी बात है। ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, मैं शुगर खत्म कर ਦਿੱਤੀ है पूरे तरीके ਦੇ ਨਾਲ, मैं ਉਹਦੇ ਤੇ काबू पा लिया। हाँ बिल्कुल। वो बताएं कैसे पाया आपने काबू? पहले तो मैं बेड में बैठ के चाय पीती थी, मेड आके रस देगी, पूरी लाइफस्टाइल ही बिल्कुल उल्टा था। अब बिल्कुल वॉकिंग शॉकिंग, जिम जाते सुबह 7 बजे, पूरा लाइफस्टाइल चेंज है। मिस्सी रोटी, नो ऑयल, नथिंग, मतलब इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज। जब मैंने सुना कि बिटिया बाहर जा रही है और उसके ड्रीम्स हैं, हमने अपने ड्रीम्स अपने बच्चों के ड्रीम्स तो नहीं स्पॉइल करने ना, अपनी लाइफ पर, मतलब कि भाई हमारी देखभाल करो। हमने हॉस्पिटल पे तो नहीं बैठना पूरा दिन। तो मैंने बोला नहीं, उसके ड्रीम्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो मैंने अपनी लाइफस्टाइल बदल दी पूरी। अब नाउ आई एम एक्टिव इन दिस थिंग। तो इट्स अ सिंपल थिंग। अब मेरे को पता है कि मेड ने इस टाइम आना है, तो मैंने अपना रूटीन ही बदल दिया कि तुम झाड़ू पोछा करो, मैं आसपास हूँ, और तुम आसपास रहो, मैं उस टाइम ही नहाऊंगी। तो मैं उस टाइम ही नहाती जब वो आसपास। अगर मैं गिर गई बाय चांस, तो वो कोई है उठाने के लिए उस टाइम। क्योंकि मेरे साथ पहले हो चुका है, मैं एक बार बाथरूम में थी, गिर गई और तोड़ना पड़ा, निकालना पड़ा। तो आपको अपने ट्रिगर्स पता होना चाहिए। मैं डिस्को लाइट्स ऐसे क्लब में जाते ही नहीं जहाँ डिस्को लाइट्स है, क्योंकि एक बार हॉल में मैं बैठी थी, पिक्चर हम देख रहे थे, फ्लैशिंग लाइट्स हुई, वहीं हॉल में अटैक हो गया, सीजर हो गया। तो सारा पॉपकॉर्न ऐसे हिल रहा था। तो एक्सपीरियंस से हो जाता है कि हमको क्या क्या सीजर्स हो रहे हैं, क्या क्या चीजें जो कि हाँ इग्नोर करनी है, अवॉइड करनी है। जैसे हर पेशेंट को अपने ट्रिगर्स पता होने चाहिए। अपने डॉक्टर के साथ जाकर डिस्कस करो। कभी अपने मेडिसिन मिस नहीं करनी। एक और पॉइंट आपके चैनल के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ, एपिलेप्सी पेशेंट्स को ड्राइव नहीं करना चाहिए।
आप लोग अगर हर जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप जाते हैं उस पर लिखा होता है आर यू एपिलेप्टिक, Yeah. तो बहुत पेशेंट्स जो होते हैं क्योंकि उनको ड्राइव करने का शौक चढ़ा हुआ है, वो चुपचाप लिख देते हैं, झूठ में लिख देते हैं आई एम नॉट एपिलेप्टिक, और डॉक्टर को भी बताते नहीं हैं। प्लीज़ आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं आपको किसी टाइम भी दौरा पड़ सकता है, अगर दौरा पड़ गया आप तो जाओगे क्रिपल हो जाओगे, चोट लग जाएगी, पर जो आम आदमी घर जा रहा है नौकरी करके या बेबी जा रहा है, इनोसेंट लेडी इज गोइंग होम, उसको भी आप ठोक दोगे, वो भी जाएगा। या आगे पीछे से खुद भी कोई भी। व्हीकल्स पे भी हाँ, एक्सीडेंट बड़ा कर भी हो सकता है, सकता है। because- शायद एपिलेप्सी से तो आप किसी को इतनी जल्दी दुनिया से रुखसत ना होना पड़े, पर हो सकता है कि इस तरह के हादसे में कोई ऐसे एक्सीडेंट हो जाए और वो चीज़ जो है वो जान भी गंवा सकते हैं। इसलिए बिल्कुल। बेटर है कि आप लोग अवॉइड करें ड्राइविंग लाइसेंस को प्रोक्योर ही करना। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज सी इन सम कंट्रीज इट इज अलाउड, इन सम कंट्री बिकॉज वहाँ इमीडिएटली सर्टेन लॉज आर देयर, इमीडिएटली दे कम फॉरवर्ड फॉर द हेल्प it is there, but in our country it is not allowed. And why you're cheating? I mean तुम लोग अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। मैंने ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मैं ड्राइव कर रही थी, बिटिया छोटी थी, मैं फ्रेशली डाइवोर्स थी, जोश में आ गई, मैं गाड़ी चला रही हूँ और मेरी गाड़ी के नीचे बंदा ऑलमोस्ट आ गया था। तो उसके बाद से आई एम वेरी स्केर्ड। अब मैं शॉफर ड्रिवन कार में जाती हूँ, कैब जाती हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मत करो, प्लीज मत करो। यू कैन बी जेल्ड फॉर दिस ऑल्सो। आई अंडरस्टैंड। उसके अलावा आपके क्या क्या शौक हैं और कैसे कैसे आप दिन अपना बिताते हैं, और ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ ये लिखाई जो है ये अब जारी है, बंद हो गई है, या आगे क्या करने वाले हैं? किसी कुछ तो सोचा होगा प्लान्स? अभी plans is to maybe write scripts for movies maybe, और maybe कुछ epilepsy के more towards epilepsy, more campaigns करूँगी more, क्योंकि अभी बहुत जागृत बहुत करना है जनता को। लोगों को स्टिग्मा इतना डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है, लोग बात नहीं करना चाहते इसके बारे में। तो मैं अभी होपफुली और कैंप्स ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। पंजाब में नॉर्थ में बहुत कम है, इसलिए आपने जो हेल्प किया है उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। और भी मैं चैनल्स को कांटेक्ट करना चाहती हूँ। बॉम्बे और पुणे में बहुत एनजीओज हैं, अगर यहाँ कोई एनजीओ मैं खोलना चाहती हूँ, लोग मुझे और बात करें और इसके बारे में मैं ये मेरी इच्छा है। आई हैव गॉट नो पर्सनल इंटरेस्ट इन इट, आई जस्ट वांट पीपल टू टॉक एपिलेप्टिक्स और उनके फैमिलीज बातें करें, जागृत करें, मेरा बस ये इच्छा है। आपके, क्योंकि आप खुद एपिलेप्सी वाले पेशेंट हैं और आपके काफ़ी सारे संपर्क में लोग आए होंगे या डॉक्टर्स होंगे, वहाँ पे आप बातचीत करती हैं क्योंकि आप वोकल हैं, आप कम्युनिकेशन में रहती हैं, आप लेखिका भी हैं, राइटर हैं, तो उससे इंसान बात करता है। जो जर्नलिस्ट है, जो राइटर है, उसको बात करना है, वो कम्युनिकेशन में रहेगा, वो लोगों से बात नहीं करेगा, पब्लिक व्यू में नहीं जाएगा, ढेर सारी बात नहीं करेगा, तो चीज़ें निकल के नहीं आएंगी। मैं जानती हूँ इस चीज़ को। कोई ऐसा वर्स्ट केस, वर्स्ट सिनेरियो या बहुत ही पॉजिटिव केस? पॉजिटिव तो वैसे मुझे आप ही दिख रही हैं, इसी को इस बीमारी में ही दौरे जो हो उसके बावजूद, जिस तरह से कोई ऐसे एक एग्जाम्पल आपके उसमें आए होंगे, संपर्क में, या आपके सामने आए होंगे? एक था इंसिडेंट, एपिलेप्सी डे था, थी कुछ 2-3 साल पहले। somebody had to come to my house to take my interview, किसी ने आना था, और जब उनको वो आई थिंक जर्नलिस्ट रिपोर्टर को पता नहीं था कि एपिलेप्सी डे, उसको बस फ़ोन किया गया था आपने इंटरव्यू लेना प्रीति सिंह का। जब मेरे घर पहुंचा तो मैं उनको पता नहीं था कि मैं एपिलेप्टिक, उनको बताया था प्रीति सिंह राइटर है। तो जब वो मेरे घर आए, उसको ये भी नहीं पता, उसको था कि प्रीति सिंह का इंटरव्यू लेना है, राइटर का, तो पर वो पता नहीं था उसको कि एपिलेप्सी डे है। हाँ बिल्कुल। तो जब उनको बताया कि एपिलेप्सी डे है और पर्पल है, और मैंने समझाया भैया आज एपिलेप्सी डे है, मैं मिर्गी, वो बंदे ने मेरा हाथ नहीं छुआ, घर से हाथ का पानी नहीं पिया, बोलता आप तो अछूत हो। ओह, ये बहुत होता है। हम अछूत नहीं है, मतलब हमको अछूत समझा जाता है। सुपरस्टिशन हाँ, बहुत डीप है, बहुत डीप है। जब दौरा भी पड़ता है, आधे लोग इसलिए वीडियो लेते हैं कि छूना नहीं चाहते क्योंकि अछूत है, कि हमको छूने से भी एपिलेप्सी मिर्गी हो जाएगी। इतना डीप है ये, वो लोग कंटेजियस समझते हैं इसको, कम्युनिकेबल डिजीज है। Yes, and it is not only in India, it's widespread. The mindset is in Canada, it's in US, the mindset is so deep even abroad.
आई थिंक आपका चैनल के थ्रू अगर ये वाइड स्प्रेड मैसेज कहीं भी जाए तो इट इज़ वेरी गुड कि ये जगह जगह जाए कि ये कोई कंटेजियस नहीं है, छूने से नहीं फैलता, इट इज़ नॉट, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब आई वॉज सो हैप्पी जब मुझे पता चला, आई वॉज कॉल्ड ऑन टेड on I'm the first India का first epilepsy patient on a TED platform. Okay. तो I was called on TED to Bombay, जो मैंने 5000 स्टूडेंट से ये बात की, उनको, और वो टेकीज थे, IIT स्टूडेंट्स, उन्होंने वर्ड एपिलेप्सी सुना ही नहीं था। हाँ। और उन्होंने मतलब उनको पता ही नहीं था कि एपिलेप्सी होता है क्या, क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी उनको इस वर्ड से रंजित किया हुआ था, मतलब कि इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। हाँ। ये तो ये तो इसको ये टैबू है। हाँ। तो मैंने जब उनको स्टेज पे बताया तो मेरे लिए वो टेड ट्रॉफी इंपॉर्टेंट नहीं थी। हाँ। मेरे लिए ये था जब 2 मदर्स पीछे आके मेरे को झप्पी पाई उन्होंने आके। हाँ। मैं भी शॉक थी। हाँ। वो तो आपने जो स्टेज पे बोला वो मेरी बेटी के साथ हो रहा है, पर हम बोल नहीं सकते। और आज वो उनकी बेटी आके, हाँ, मेरा पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो बेटी आके मैंने उसको उस बेटी को व्हाट्सएप का एडमिन बनाया हुआ है। मतलब मेरे लिए वो ट्रॉफी थी जब वो झप्पी आके मेरे को मिली। So I felt very happy. That's what I मतलब ऐसे से जब रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मैसेज ये देना चाहेंगे कि पॉजिटिव रहो, बस पॉजिटिव रहो, आके मुझसे बात करो। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, अपनी स्टोरीज आके मुझे बताओ। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मैं इंटरव्यू लेती हूँ पेशेंट्स के, डॉक्टर्स के। आप लोग अपनी स्टोरीज शेयर करो, क्योंकि बहुत लोगों को हिम्मत मिलती है। क्लोजेट से निकलो। एपिलेप्सी बहुत ही छोटी बीमारी है, उसको इतना बड़ा भाव मत दो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं जिनको एपिलेप्सी है, उनको मॉरल सपोर्ट दो, क्योंकि बहुत सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। उनको निकलने दो, उनको बात करने दो, उनके प्लीज़ स्टिग्मा उनको मत बनाने दो, उनको प्लीज़ लेट देम लिव द लाइफ। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो पॉजिटिव ऑरा है, कहते हैं कि बीमार है, इनको कौन कहेगा ये बीमार है, जो बीमारी लेके बैठी हुई है वो इतनी पॉजिटिव है। लोग चंगे ਜਿਹੜੇ कि अपने आप ਨੂੰ ठीक ठाक कहते ने, जिन्हें कहते भी सानू कभी छिक नहीं आई, वो इन्ने नैगेटिव हो सकते हैं, वो अपने आप ਨੂੰ बिल्कुल प्रॉपरली नहीं रख सकते। जबकि इन्ने डिसऑर्डर्स जो निकलन के बावजूद प्रीति सिंह इन्ने पॉजिटिव ने, इन्नी चढ़ती कला ने। उन्होंने यही मैसेज दिता सारे के सारे ਜਿਹੜੇ मिर्गी के दौरे जिन्हें लोगों को पैंदे ने कि कुछ भी होवे पॉजिटिव रहो, गल करो, खुल के गल करो, प्लेटफॉर्म्स ते आओ, उन्होंने तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डॉक्टर्स नूं कॉन्टैक्ट करो। तुहानूं पता होना चाहिए है कि किहड़ियां चीज़ां ने जिस दे कारण तुहानूं यह दौरा ट्रिगर हुंदा है। स्ट्रैस हो सकता है, कोई होर कारण वजह हो सकती, जिवें उन्होंने दस्सिया कि मैनूं डिस्को दी लाइट्स जिहड़ियां सी वो जदों अखां 'च पैंदियां सी इदां सी ते नर्व 'च मेरे स्ट्रैस पैंदा सी, कई ऐसी चीज़ां हो सकदियां। अपने आप नूं पॉजिटिव रखो, कोई भी बीमारी, कोई भी डिसऑर्डर जिहड़ा है उस चों निकलिया जा सकता है जे तुसीं सकारात्मक रहो। जिंदगी जीण लई हुंदी है, बार बार नहीं मिलती, उसका बेस्ट मैनेजमेंट करके जे कोई कमी पेशी भी हैगी है तो अपने आप नूं उन्नी कौरा 'च लैके आना चाहिए कि सुधार करके जिंदगी नूं चंगी जिउ सको। सारे रंग ने जिंदगी दे माणने चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। और नहीं तो जे किसी नूं एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है तो घट्टो घट्ट प्रीति सिंह नाल तुसीं गलबात कर सकते हो। आज मेरे मेहमान सीगे प्रीति सिंह, बहुत सोहणियां किताबां लिखियां ने, वो भी पढ़ो तो उन्हां नाल कॉन्टैक्ट करो। कैमरा पर्सन सरबजीत दे नाल बिंदु सिंह, चंडीगढ़। तुसीं देखदे रहो D5 चैनल पंजाबी। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे। गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुक्मरानां नूं सिੱਧੇ सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर। दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर। विदेशां 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ। बनांगे बुलंद आवाज। खेड, सिक्ख्या, सेहत, खेती ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात। संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल। की ने साडे कानून, फर्ज ते अधिकार। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।